Good morning, students. And dear students, our today's topic of discussion is relationship between APP and MPP. Okay, so as you know that production function chapter is going on. So from this chapter today I will discuss about the relationship between APP, that is average physical product, and MPP, that is marginal physical product. Okay, and what APP is about we have already discussed in our previous classes. Okay, and what MPP is about, MPP क्या है, इसके बाद APP क्या है and TPP क्या है, हम लोगों ने already discuss कर लिया. Okay, and in our previous class we have discussed about the law of variable proportion, that is the relationship between TPP and MPP. So now आज हम लोग डिस्कस करेंगे the relationship between APP and MPP. Okay, so please concentrate on your class. So dear students, the relationship. So on the x-axis and on y-axis, on x-axis we measure what? Lever, and on y-axis we measure both APP and MPP. Okay, APP and MPP. So dear students, when our APP curve, that is average physical product, when average physical product rises, MPP also rises. Okay, जब वो increase कर रहा है वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है. But MPP देखिए आप लोग, MPP कितना है, MPP इतना है, इसके बाद APP कितना, इतना. So definitely MPP is greater than APP. ठीक है. So first point is that when our MPP rises, APP also increases. Okay, APP also increases, but what? But MPP is greater than APP. APP is greater than APP. MPP is greater than APP. Okay, so this is our first point. Okay, and our second point is, so diagram में थोड़ा गलती है. Our second point is that when APP is maximum, both MPP and APP are equal. देखिए आप लोग, वो जो पॉइंट है आप लोग, तो APP कहाँ पे मैक्सिमम में, आप लोग बोलिए. APP मैक्सिमम वहां पे है, वो APP का मैक्सिमम पॉइंट है कि नहीं. मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, APP क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, APP डिक्रीजेस कर रहा है. तो आफ्टर रीचिंग एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट में जाने के बाद APP क्या कर रहा है, APP फॉल्स, है कि नहीं. सो एट दिस पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट, देखिए वो मैक्सिमम पॉइंट है किसका, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ what, maximum point of APP. So when APP is maximum, देखिए when APP is maximum, रुकिए आप लोग थोड़ा, when APP is maximum, okay, when so this is our MPP, है कि नहीं. So when APP is maximum, both APP and MPP are equal. So our second point is when
when our APP is maximum, both APP and MPP are equal. Both average physical product and marginal physical product are what? Are equal. So that is APP is equal to MPP at the maximum point of APP. है कि नहीं? So उसको थोड़ा आप लोग इस तरह से कर सकते हो गया आपका. है कि नहीं? देखिए, so at this point, at maximum point of APP, both MPP and APP are equal. Okay, so our third point is that when APP decreases, MPP क्या कर रहा है? MPP पे डिक्रीज कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, वो भी डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं? So but देखिए, when APP decreases, but the APP is greater than what? देखिए, कौन ज्यादा है? APP ज्यादा है कि नहीं? As compared to MPP. So APP is greater than MPP. Okay? So हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? Our first point is that, वो आप लोग प्लीज मत दिखाना, ठीक है? वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, बट वो जो है आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है? वो लाइन आप लोग ड्रॉ मत कीजिए, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को वो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, our first point is that when MPP rises, APP also increases, but MPP is greater than APP. है कि नहीं? वो एक. And second point is that when APP is maximum, both MPP and APP are equal. Okay. And our third point is that when APP decreases, MPP also decreases, but APP is greater than MPP. फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? एमपीपी ज्यादा है एपीपी से, बट थर्ड पॉइंट में एपीपी ज्यादा है एमपीपी से. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एपीपी एंड एमपीपी, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछता है एग्जाम में तो अच्छे से आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, और एक है, आई होप कि वो समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है? सो मैं रब कर रही हूँ, एंड आप बहुत लोगों ने वो होमवर्क सबमिट नहीं किया है, तो वो आप लोग याद रखना प्लीज. ओके, सो प्लीज 1 मिनट. प्लीज आप लोग सबमिट करना अपना होमवर्क. आप लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया है, मैंने सबको एब्सेंट लगा दिया है. सो प्लीज वो बात आप लोग ध्यान में रखना. सो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टीपीपी एंड एमपीपी, है कि नहीं, रिलेशनशिप. सो उसका और एक नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. सो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हम लोगों को क्या शो करना है? द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? टीपीपी एंड एमपीपी. प्रपोर्शन. ओके, और एक नाम है उसका रिटर्न्स टू ए फैक्टर. व्हाट इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर? रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ओके, सो देखिए, हम लोगों ने ऐसे मैं थोड़ा दिखा रही हूँ, वो तो हम लोगों ने कर लिया, सिर्फ थोड़ा देख लीजिए. है कि नहीं? सो टीपीपी जब मैक्सिमम में है, एमपीपी क्या होता है? 0 होता है. टीपीपी जब मैक्सिमम में है, एमपीपी क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? सो वहां पे क्या होता है? एमपीपी नेगेटिव. एमपीपी क्या होता है? नेगेटिव. वहां पे क्या होता है? 0.
तो वहां पे कितना स्टेज होता है उसका? 3, है कि नहीं? सो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो वो मैंने पिछले क्लास में नहीं बोला है, तो प्लीज सुन लेना आप लोग, सेकेंड एंड देन थर्ड, है कि नहीं? सो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग returns to a factor, and then second stage is called what? Diminishing returns to a factor, diminishing returns to a factor, diminishing returns to a factor, and then third stage is called what? Negative returns to a factor. Okay, so first stage is called increasing returns to a factor, second stage is called diminishing returns to a factor, and third stage is called what? Negative returns to a factor. Okay, so what is the reason behind increasing returns to a factor? आप लोगों को पता है? As because वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है बोथ बिटवीन आपका वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है. सो फॉर दिस रीजन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस होता है, देन आवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है. ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? प्रेशर आ जाता है आपका किसके ऊपर? प्रेशर ऑन किसके ऊपर? फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर आता है, एज बिकॉज आवर फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल फैक्टर्स इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, लेवल ज्यादा हो रहा है बट फिक्स्ड फैक्टर कम है, तो उसके ऊपर फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर होने के कारण हमारा वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. And what is the reason behind negative returns to a factor? We know that as because of overcrowding, ज्यादा crowding हो जाता है. अगर हमारे पास फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट है, 2-3 मशीन्स है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं बढ़ा रहे, उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लैंड भी कम है उसके ऊपर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो जमीन हमारे पास है वो कांस्टेंट है, जो मशीन्स हमारे पास है वो कांस्टेंट है. सिर्फ अगर 100 लेबर आ जाएगा तो वहां पे होगा क्या? नहीं ना. सो किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा? आपका फिक्स फैक्टर्स के ऊपर, और लेबर सब क्या हो जाएगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ज्यादा भीड़ जम जाएगा. सो फॉर दिस रीजन प्रोडक्टिविटी जो होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर को देना चाहिए पर लेबर को, वो क्या होता है? जो एडिशन होना चाहिए टोटल प्रोडक्शन में, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एज बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग, एज बिकॉज ऑफ lots of pressure on fixed inputs. Okay, so this is the main reason behind negative returns to a factor, my dear students. Okay, so वो आपका reasons है. ठीक है, so आपको अच्छे से करना है. वो first stage increasing returns to a factor, second stage diminishing, and third stage is called negative returns to a factor. Okay, तो हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया. So next we will start our next chapter, that is आपका मैं start करूँगी I think theory of demand. Okay, so dear students, for today this much and thank you. And your today's homework is the relationship between APP and MPP. Please मुझे submit करना है. ठीक है, so dear students, for today this much, thank you.